નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા મજામાં છો ને? હું પણ મજામાં છું અને આપ સૌનું હોમ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે એક્ટિવિટી નંબર 7 જોવાના છીએ અને આ એક્ટિવિટીમાં શું કરવાનું છે તેની આપણે સૂચના વાંચીને સમજ મેળવીએ. મિત્રો, તમારી ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 49 પર આ એક્ટિવિટી આપેલી છે અને આ એક્ટિવિટીમાં શું કરવાનું છે તે માટેની આપણે સૂચના વાંચી લઈએ. રીડ ધ પેસેજ એન્ડ ડાયલોગ્સ. નીચેનો સંવાદ પૂર્ણ કરો. કૌંસમાંથી યોગ્ય ફ્રેસીસ ઓર ક્વેશ્ચન્સ પસંદ કરો. મિત્રો, તમારી ટેક્સ્ટ બુકનું પેજ નંબર 49 ઓપન કરો અને જુઓ કે અહીં એક ઋત્વા નામની સ્ટુડન્ટનો થોડો પરિચય આપેલો છે અને તેના દ્વારા આપણે નીચે જે ડાયલોગ બોક્સ આપેલું છે તે પૂર્ણ કરવાનું છે. અને હા, તેના માટે કેટલાક ઓપ્શન્સ પણ આપેલા છે. તેમાં કેટલાક ફ્રેસીસ છે અને કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ છે. તો ડાયલોગ બોક્સમાં કઈ જગ્યાએ ફ્રેસીસ મૂકવાના છે અને કઈ જગ્યાએ ક્વેશ્ચન્સ મૂકવાના છે તે પણ આપણે જોઈશું. મિત્રો, સૌથી પહેલાં અહીંયા ઋત્વા નામની જે સ્ટુડન્ટ છે તેનો પરિચય આપેલો છે તે આપણે ધ્યાનથી વાંચી લઈએ. ઋત્વા પાઠક સ્ટડીઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 7. She is 12 years old. She won the cycle race. She got the silver medal. She was very happy. A journalist came to her and asked some questions. મિત્રો, તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ડાયલોગ બોક્સ આપેલું છે તે આપણે પહેલાં વાંચી લઈએ. અહીં જર્નાલિસ્ટ અને ઋત્વા બંને વચ્ચેનો સંવાદ આપેલો છે અને આ સંવાદમાં કેટલીક જગ્યાએ આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી છે. હવે આ ખાલી જગ્યામાં કયા ફ્રેસીસ ઓર ક્વેશ્ચન્સ આવશે તેનો આપણે વિચાર કરવાનો છે. તો ચાલો પહેલાં આપણે જર્નાલિસ્ટ અને ઋત્વા આ બંને વચ્ચેનો જે સંવાદ છે તે ખાલી જગ્યા સાથે જ એકવાર વાંચી લઈએ. જર્નાલિસ્ટ: કોંગ્રેચ્યુલેશન ઋત્વા. ઋત્વા: ડેશ. જર્નાલિસ્ટ: હાઉ ડુ યુ ફીલ આફ્ટર વિનિંગ ધ રેસ? ઋત્વા: quite fine. Journalist: dash. ઋત્વા: I am 12. Actually, I am younger than all other participants. Journalist: what helped you to win the race? ઋત્વા: dash and dash. Journalist: and tell me about your practice time. ઋત્વા: I practice cycling in the morning. Dash. Journalist: any dream? ઋત્વા: yes, to participate in the Olympic and represent India. Journalist: sure, we hope. Dash. ઋત્વા: થેન્ક યુ. મિત્રો, આ સાથે જ જે જગ્યાએ ડેશ આપેલું છે તે જગ્યાએ કયા કયા ફ્રેસીસ ઓર ક્વેશ્ચન્સનો યુઝ કરી શકાય તેનું લિસ્ટ પણ આપણને આપેલું છે. તો પહેલાં આપણે તે ઓપ્શન્સ જોઈ લઈએ. આપણને ઓપ્શન્સ આપેલા છે: પ્રેક્ટિસ, યુ કેન ડુ ઇટ, પાપાસ કોચિંગ, થેન્ક યુ સર, હાઉ ઓલ્ડ આર યુ, ફોર 2 hours. મિત્રો, જર્નાલિસ્ટ અને ઋત્વાના સંવાદમાં જે જગ્યાએ ખાલી જગ્યા આપેલી છે તે જગ્યાએ આ ઓપ્શન્સમાંથી જ આપણે ફ્રેસીસ ઓર ક્વેશ્ચન્સ મૂકવાના છે.
તો તેના માટે આપણે વાક્ય સમજવા પડશે અને જર્નાલિસ્ટ શું પૂછવા માગે છે તે આપણે સમજવું પડશે તથા તેનો પ્રશ્ન સમજીને ઋત્વા શું જવાબ આપે છે તે પણ સમજવું પડશે. અને હા, કેટલીક જગ્યાએ તો જવાબ પહેલાં આપેલા છે અને તે જવાબ માટે કયો ક્વેશ્ચન આવશે તે આપણે આપેલા ઓપ્શન્સમાંથી શોધવાનું છે. તો ચાલો આપણે આ એક્ટિવિટીમાં 1 બાય 1 ડાયલોગ વાંચતા જઈએ અને જે જગ્યાએ ખાલી જગ્યા આપેલી છે તેમાં કયો ફ્રેસીસ આવશે અથવા તો ક્વેશ્ચન આવશે તેને આપણે પૂરતા જઈએ. મિત્રો, સંવાદમાં સૌથી પહેલાં જર્નાલિસ્ટની વાત છે. જર્નાલિસ્ટ: કોંગ્રેચ્યુલેશન ઋત્વા. મિત્રો, અહીં આપણે જ્યારે જર્નાલિસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેશન કહે છે ઋત્વાને, તો ઋત્વા તેનો શું રિપ્લાય આપશે તે આપણે આ ઓપ્શન્સમાંથી વિચારવાનું છે. આપણી પાસે ઓપ્શન્સ છે: પ્રેક્ટિસ, યુ કેન ડુ ઇટ, પાપાસ કોચિંગ, થેન્ક યુ સર, હાઉ ઓલ્ડ આર યુ, ફોર 2 hours. મિત્રો, આપણી સામે ઓપ્શન્સ છે અને તે ઓપ્શન્સમાંથી ઋત્વાએ કોંગ્રેચ્યુલેશન માટે શું રિપ્લાય આપ્યો હશે તે વિચારવાનું છે. તમે ઓપ્શન્સ 1 બાય 1 જોતા જાઓ અને મને કહો કે ઋત્વાએ શું રિપ્લાય આપ્યો હશે. યસ, આપણને જ્યારે કોઈ કોંગ્રેચ્યુલેશન કહે ત્યારે આપણે તેના જવાબમાં શું કહીએ છીએ? ઋત્વાએ પણ જર્નાલિસ્ટે જ્યારે કોંગ્રેચ્યુલેશન કહ્યું ત્યારે તેના જવાબમાં કહ્યું, થેન્ક યુ સર. હવે આગળનો સંવાદ જોઈએ. જર્નાલિસ્ટ: હાઉ ડુ યુ ફીલ આફ્ટર વિનિંગ ધ રેસ? ઋત્વા: ક્વાઇટ ફાઇન. જર્નાલિસ્ટ: ડેશ. ઋત્વાનો સંવાદ છે. આઈ એમ 12. Actually, I am younger than all other participants. મિત્રો, મેં તમને કહ્યું હતું ને કે આ સંવાદમાં કેટલીક જગ્યાએ પહેલાં જવાબ આપેલા છે અને તે જવાબ ઉપરથી આપણે કયો ક્વેશ્ચન આવશે તે ઓપ્શન્સમાંથી શોધવાનું છે. તો ચાલો હવે અહીં જવાબ આપેલો છે તો તેના માટે કયો ક્વેશ્ચન આવશે તે આપણે વિચારીએ. અહીં ઋત્વાનો આન્સર છે આઈ એમ 12. તો આપણે વિચારવું પડશે કે જર્નાલિસ્ટે ઋત્વાને કયો પ્રશ્ન કર્યો હશે. આપણી પાસે ઓપ્શન્સ છે: પ્રેક્ટિસ, યુ કેન ડુ ઇટ, પાપાસ કોચિંગ, થેન્ક યુ સર, હાઉ ઓલ્ડ આર યુ, ફોર 2 hours. હવે મને કહો જોઈએ કે ઋત્વાના આન્સર માટે જર્નાલિસ્ટનો કયો ક્વેશ્ચન હશે. ખૂબ સરસ. જર્નાલિસ્ટે પૂછ્યું હશે હાઉ ઓલ્ડ આર યુ. ત્યારે ઋત્વા જવાબ આપે છે આઈ એમ 12. એકચ્યુઅલી આઈ એમ યંગર ધેન ઓલ અધર પાર્ટિસિપેન્ટ્સ. વેરી ગુડ. આ જ રીતે આગળ પણ જે ખાલી જગ્યા આપેલી છે તે આપણે ઓપ્શન્સ પસંદ કરી પૂરતા જઈએ. હવે જર્નાલિસ્ટ આગળ પૂછે છે, વોટ હેલ્પ્ડ યુ ટુ વિન ધ રેસ? ઋત્વા: ડેશ એન્ડ ડેશ. મિત્રો, આપણી સામે ફરીથી ઓપ્શન્સ છે: પ્રેક્ટિસ, યુ કેન ડુ ઇટ, પાપાસ કોચિંગ, થેન્ક યુ સર, હાઉ ઓલ્ડ આર યુ એન્ડ ફોર 2 hours. હવે મને વિચારીને કહો જોઈએ આ ક્વેશ્ચન માટે ઋત્વાએ કયા આન્સર્સ આપ્યા હશે. મિત્રો, અહીં 2 બ્લેન્ક્સ આપેલી છે. એનો મતલબ એમ છે કે અહીં આપણે 2 ઓપ્શન્સ પસંદ કરવાના છે અને તે કયા હોઈ શકે તે આપણે વિચારવાનું છે. સરસ સરસ, વિચારો અને કહો જોઈએ. વોટ હેલ્પ્ડ યુ ટુ વિન ધ રેસ? ઋત્વા તેનો જવાબ આપતા કહે છે પાપાસ કોચિંગ એન્ડ પ્રેક્ટિસ.
ખૂબ સરસ. હવે આપણે આગળ જોઈએ. જર્નાલિસ્ટ એન્ડ ટેલ મી અબાઉટ યોર પ્રેક્ટિસ ટાઈમ. ઋત્વા, આઈ પ્રેક્ટાઇઝડ સાયકલિંગ ઇન ધ મોર્નિંગ ડેસ. હવે આપણી સામે ઓપ્શન્સ આપેલા છે. પ્રેક્ટિસ, યુ કેન ડુ ઇટ. પાપાસ કોચિંગ, થેન્ક યુ સર. હાઉ ઓલ્ડ આર યુ? એન્ડ ફોર 2 hours. હવે કહો જોઈએ કયો આન્સર આવશે. આપેલા ઓપ્શન્સમાંથી કયો ફ્રેઝ મૂકવાથી આ સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ થશે? વેરી ગુડ. ફોર 2 hours. શું આવશે? ફોર 2 hours. હવે આ વાક્ય આપણે ફરીથી વાંચીએ. આઈ પ્રેક્ટાઇઝડ સાયકલિંગ ઇન ધ મોર્નિંગ ફોર 2 hours. ઓકે, ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. જર્નાલિસ્ટ, એની ડ્રીમ? ઋત્વા, યસ, ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ ઓલિમ્પિક એન્ડ represent India. જર્નાલિસ્ટ, શ્યોર, વી હોપ ડેસ. હવે આપણે ફરીથી વિચારવાનું છે કે આ ખાલી જગ્યામાં શું આવશે. આપણી સામે ઓપ્શન્સ છે. પ્રેક્ટિસ, યુ કેન ડુ ઇટ. પાપાસ કોચિંગ, થેન્ક યુ સર. હાઉ ઓલ્ડ આર યુ? એન્ડ ફોર 2 hours. હવે તો તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે કયો આન્સર આવશે. યસ, યુ કેન ડુ ઇટ. જર્નાલિસ્ટ શું કહે છે? શ્યોર, વી હોપ યુ કેન ડુ ઇટ. ઋત્વા સેઝ થેન્ક યુ. ફ્રેન્ડ્સ, આપેલા ઓપ્શન્સમાંથી આપણે યોગ્ય ફ્રેસીસ એન્ડ ક્વેશ્ચન્સ પસંદ કરીને આખો સંવાદ પૂર્ણ કર્યો. અને હવે આપણે આ સંવાદ કે જે આપણે પૂર્ણ કર્યો છે તે ફરી એકવાર વાંચી લઈએ. જર્નાલિસ્ટ, કોંગ્રેચ્યુલેશન ઋત્વા. ઋત્વા, થેન્ક યુ સર. જર્નાલિસ્ટ, હાઉ ડુ યુ ફીલ આફ્ટર વિનિંગ ધ રેસ? ઋત્વા, ક્વાઇટ ફાઇન. જર્નાલિસ્ટ, હાઉ ઓલ્ડ આર યુ? ઋત્વા, I am 12. Actually, I am younger than all other participants. Journalist, what helped you to win the race? Ritva, Papa's coaching and practice. Journalist, and tell me about your practice time. Ritva, I practiced cycling in the morning for 2 hours. Journalist, any dream? Ritva, yes, to participate in the Olympic and represent India. Journalist, sure, we hope you can do it. ઋત્વા, થેન્ક યુ. મિત્રો, આજે આપણે સંવાદ પૂર્ણ કરવાની જે એક્ટિવિટી કરી તેમાં તમને ખૂબ મજા આવી હશે, બરાબર ને? ફ્રેન્ડ્સ, આ એક્ટિવિટી દ્વારા આપણે જવાબ પરથી કયો પ્રશ્ન આવે તેનો પણ અંદાજ લગાવતા શીખ્યા, બરાબર ને? આ જ રીતે આપણે નવી નવી એક્ટિવિટી સાથે મળતા રહીશું અને ત્યાં સુધી સુરક્ષિત રહો. થેન્ક યુ. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर भाषा सज्जता के तहत भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के जरिए भाषा के बारे में हमारी समझ बनाने का प्रयत्न किया है. पिछले एपिसोड में भी हमने शब्दों को आगे पीछे रखकर सही तरीके से किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी. आज हम इसी प्रकार से यहाँ पर भाषा सज्जता से जुड़ी हुई एक प्रवृत्ति करने वाले हैं. देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और यह चित्र किसका है? हाँ, यह चिड़िया है और इसको हम पक्षी भी कह सकते हैं. और यह कितनी चिड़िया आपको दिखाई दे रही है? एक चिड़िया दिखाई दे रही है और हम चिड़िया इस प्रकार से लिखते हैं. दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं तो चिड़िया कितनी है? 3 चिड़िया आपको दिखाई दे रही है. तो क्या अब चिड़िया
हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो क्यों नहीं लिख सकते, और आपको समझना भी है। तो देखिए कि भाई अगर एक चिड़िया है तो मैंने इस प्रकार से चिड़िया लिख दिया है, और 3 चिड़िया है तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे इस प्रकार से लिखना चाहिए। और इसका सही उच्चारण भी क्या होगा? चिड़िया। देखिए, चिड़िया और चिड़िया, यानी कि एक चिड़िया है तो हम चिड़िया शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि एक वचन में चिड़िया बोला जाता है और बहुवचन में चिड़िया। तो लेखन और उच्चारण में भी यह भेद है, यानी कि एक वचन और बहुवचन में हमें किस प्रकार से शब्दों को परिवर्तित करना है यह भी समझना है। साथ इन शब्दों का वाक्य प्रयोग जब करते हैं तब हमें कौन सी सावधानी बरतनी है यह भी यहाँ पर समझना है। तो देखिए जरा, चिड़िया उड़ रही है, और अब यही वाक्य जब बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो किस प्रकार से होता है देख लीजिए जरा। चिड़िया उड़ रही है, यहां पर आपको यह भेद समझ में आया होगा कि जब मैं ये बोलता हूं कि चिड़िया उड़ रही है, और जब बोलता हूं चिड़िया उड़ रही है, तो है और हैं, यानी कि एक वचन में है और बहुवचन में है का प्रयोग होता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तब हमें इन बातों को ध्यान में रखना होता है। आइए एक ऐसा ही उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? तो कली है, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक कली है तो इसलिए बोलते हैं कली है। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा कली है तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई कलियां है ना, तो क्या लिखा जाएगा? कलियां। एक वचन में कली और बहुवचन में कलियां। अब इसका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। यह गुलाब की कली है, कोई भी कली ले सकते हैं आप। और यहां पर देखिए, ये गुलाब की कलियां हैं, तो यह का क्या हो गया? ये हो गया। और है का है, कली का तो कलियां हो ही गया, यानी कि एक वचन में से हमने बहुवचन में शब्द को परिवर्तित किया। उसके बाद जब हम शब्द का वचन परिवर्तन करते हैं तो हमें इन बातों को जरूर ध्यान में रखना है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ये क्या है? हाँ, यह पानी की बूंद है। हाँ, बूंद तो बूंदे है ना, और इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होगा? बूंद गिर रही है और बूंदे गिर रही हैं। तो यह बात आपको यहाँ पर समझनी है। और इसी प्रकार से जब भी आप शब्दों को एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तब आपको ध्यान में रखना है। अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए, यह खिड़की है और यह एक खिड़की है, यानी कि एक वचन है। खिड़की शब्द को जब बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो खिड़की का क्या हो जाता है? हाँ, खिड़कियां। और उनसे जुड़ा हुआ जब वाक्य बनाते हैं तो इस प्रकार से बन सकता है। आप दूसरी तरह से भी वाक्य बना सकते हैं। खिड़की खुली है, या मेरे घर में एक खिड़की है ना, आप ऐसा भी कह सकते हैं। आप चाहे जो भी वाक्य बनाएं, लेकिन एक वचन में वाक्य किस प्रकार से बनता है और बहुवचन में जब उसी शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमें किस प्रकार से वाक्य रचना करनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर समझना है। खिड़कियां खुली हैं, तो यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। ये लड़की है और लड़की क्या कर रही है? तो खेल रही है, लेकिन साथ में ज्यादा लड़कियां हैं, तब तो आप समझ गए हैं कि भाई लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। और वाक्य इस प्रकार से मैंने यहाँ पर रखा है कि भाई लड़की खेल रही है, तो यहाँ पर अब क्या होगा आपको सोचना है जरा। हाँ, लड़कियां खेल रही हैं, तब तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर वचन परिवर्तन के कुछ उदाहरण तो देखे, और शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन शब्दों का वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में भी जानने का प्रयत्न किया। और अब तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जब हम एक वचन में से बहुवचन में शब्द को परिवर्तित करते हैं तब हमें वाक्य किस प्रकार से लिखना है, यानी कि एक वचन में जब वाक्य लिखते हैं तब वह किस प्रकार से होता है, और उसी शब्द का जब बहुवचन में परिवर्तन करते हैं तो वाक्य में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और अब आपको आपकी किताब में से ऐसे ही शब्दों को खोजना है, ढूंढना है, उनकी सूची बनानी है
और उसके बाद उन्हीं शब्दों को एक वचन में से बहुवचन में या बहुवचन में से एक वचन में परिवर्तित करके उनके आधार पर यानी कि उनका ही प्रयोग करके आपको भिन्न भिन्न वाक्य बनाने हैं, ताकि आप अच्छी तरह से वचन परिवर्तन की इस प्रक्रिया को समझ सके। आइए अब ऐसा ही एक दूसरा अभ्यास है जो भी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसका अभ्यास भी यहाँ पर देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ शब्दों को देख रहे हैं और शब्द इस प्रकार से है क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या। और आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाए हैं और जब भी आप कुछ बातें करते हैं तब भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जरूर करते होंगे। आज हम यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की किस प्रकार से पूर्ति हमें करनी चाहिए, यानी कि इनमें से कौन से शब्द का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब हम अपनी बात की प्रस्तुति करते हैं तब इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर इस अभ्यास के जरिए जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए जरा, आपको ये रिक्त स्थान पढ़ना है और सोचना है कि इस रिक्त स्थान में इनमें से कौन सा शब्द आएगा और हमें सही वाक्य यहाँ पर मिलेगा। तो पढ़िए, पहला रिक्त स्थान कौन सा है? राधा पढ़ने में तेज है, और खाली जगह यहाँ पर मैंने छोड़ दी है, खेल में नहीं। अब आपको ये सोचना है कि इन दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए या इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ऊपर जो हमने शब्द पढ़े हैं या यहाँ पर रखे गए हैं उनमें से यहाँ कौन सा शब्द जुड़ेगा। देखिए, मैं एक शब्द जोड़कर आपको दिखाता हूं और वाक्य पढ़िए। राधा पढ़ने में तेज है और खेल में नहीं। तो क्या यह वाक्य आपको सही लगता है? नहीं लगता। तो सोचिए जरा कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि कौन सा शब्द यहाँ पर और की जगह पर आएगा। कि यहाँ पर और की जगह पर आएगा लेकिन। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं, है ना। हम किसी के भी बारे में इस प्रकार से जब बात करते हैं तब ऐसा है, उसका कारण यह है, इस प्रकार से बात करते हैं। तो यहाँ लेकिन शब्द से हम ये बात जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। पढ़िए, रोहित बहुत तेज भागा। रिक्त स्थान है, वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। आपको मन ही मन ये सोचना है कि भाई इस वाक्य को पूरा करने के लिए मुझे ऊपर में से कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और आप सोच भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि भाई रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, क्यों, ताकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था और वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। इनमें से सही रूप में कौन से शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए। आइए एक उदाहरण में यहाँ पर दिखाता हूं, आपको सोचना है कि यह सही है कि गलत है। पढ़िए जरा वाक्य। रोहित बहुत तेज भागा ताकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो यह सही है, गलत है? सही नहीं लगता। तो सोचिए जरा कि भाई ताकि नहीं आएगा तो कौन से शब्द से यह वाक्य हमें सही रूप में यहां पर मिल सकता है, या हम लिख सकते हैं या बना सकते हैं। हाँ, यहां पर आएगा क्योंकि। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। भाग रहा था लेकिन उसका कारण क्या था? कि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो हमें यह बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके अर्थ हमें एक समान ही लगते हैं, लेकिन सही रूप से कौन से शब्दांश का कब और किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, यह समझ हमें यहां पर बनानी है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। पढ़िए, मैं समझता हूं, खाली जगह, वह क्या कहना चाहता है। अब सोचिए जरा और मन ही मन आप भी रिक्त स्थान भर के जरा एक बार वाक्य पढ़ लीजिए। मैं यहां आपको एक उदाहरण दिखा देता हूं। मैं समझता हूं आप, वह क्या कहना चाहता है। तो क्या यह वाक्य आपको सही लगता है? नहीं लगता। तो सोचिए कि भाई आपकी जगह पर क्या आएगा। आपकी जगह पर आएगा कि मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहता है ना। तो अब तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य पढ़िए जरा। सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल नहीं आया। आप भी कभी कभार आपके साथ भी ऐसा होता हो, तो यह तो आपको पता ही है कि भाई यहां पर रिक्त स्थान में कौन सा शब्द जुड़ेगा। तो देखिए मैंने यहां पर और लिखा है, तो यह सही है? नहीं है।
हाँ, यहाँ पर आएगा इसलिए कि भाई सुरेश को बुखार था, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो ये तो आपकी रिक्त स्थान की जो पूर्ति है वह सही हो गई। अब और 2 उदाहरण मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो आपको ही पूर्ण करने हैं। तो देखिए जरा, पढ़िए वाक्य। देखिए यहाँ पर जो वाक्य आप देख रहे हैं कि आप चाय पसंद करेंगे कॉफी। अब सोचिए, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी दोनों में से आप क्या पसंद करेंगे? ऐसा अगर कोई हमें पूछ रहा है तो उन 2 शब्दों के बीच ऊपर में से कौन से शब्दांश को जोड़ा जाएगा? हाँ, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी। यहां पर मैंने और रखा है तो यह गलत है। चाय और कॉफी तो यानी कि दोनों की बात हो गई है ना। तो चाय पसंद करेंगे या कॉफी, इस प्रकार से भी हम इस बात को कह सकते हैं। आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह है, शाम को खेल सकूं। तो अब सोचिए, क्योंकि, ताकि, इसलिए। हाँ, आपको लगेगा कि भाई इसलिए भी आ जाएगा, क्योंकि भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर सही रूप से कौन सा शब्द जुड़ेगा? हाँ, ताकि। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को मैं खेल सकूं। तो अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर कुछ शब्दांशों को जोड़कर 2 वाक्यों में किस प्रकार से जोड़ना चाहिए और सही रूप से कौन सा शब्दांश कौन से वाक्य को जोड़ेगा, इसके बारे में कुछ उदाहरण देखें। लेकिन आपको आपकी किताब में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो इकाइयों में हैं। आप जिस कहानी को पढ़ते हैं या इकाई को पढ़ते हैं उसमें कई सारे ऐसे वाक्य हैं जो क्योंकि, ताकि, इसलिए को जोड़ते हैं। तो आपको उसका अभ्यास जरूर करना चाहिए और ऐसे वाक्य भी अपनी किताब में से अपनी कॉपी में लिखकर उनकी भी सूची बनानी चाहिए ताकि हम सही रूप से भाषा का प्रत्यायन कर सके। तो मैं मानता हूं कि आज हमने यहाँ पर वचन परिवर्तन के कुछ और उदाहरण देखे और साथ ही साथ रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्दांशों से किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में जानने का प्रयत्न किया। तो आपको ये अच्छा लगा होगा और आप खुद भी ऐसे अभ्यास करके आपकी जो भाषा है उसको और भी समृद्ध करेंगे। तो मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।